Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, here we will discuss about the group in algebra, and we will discuss few examples about group. So let's see. First of all, what is a group? A non-empty set G is group if the closure law holds in G. By the closure law, we mean for any two element of set G, A star B will also belong to G. This is the closure law. That is, if we take any two element, then value of A star B will also belong to G. The second property for set G to be a group is associative law holds in G. Associativity holds in G under star. That is, for three element of set G, the associative property must hold in set G. That is, star must be associative binding operation for any element of set G. This is the second property. Identity law holds in G. And A belong to G, there will exist E in set G such that A star E or E star A both will be equal to A. Inverse law holds in G. Inverse यहाँ इसका मतलब है existence of inverse element in set G. That is, for element A belong to G, there will exist another element A dash in G such that when both of them are combined either this way or in this way, both will give the identity element. Inverse element is an element which is combined with any other element. It will give the identity. So the set G, if set G is a group, then every element of set G must have inverse element with respect to the binding operation star. So this is the fourth property for set G to be a group. If commutative law holds in G, then G is called Abelian group. This is the fifth property. 1 से लेकर 4 तक ये चारों प्रॉपर्टीज अगर किसी भी सेट में हो तो उसी सेट को हम उसी बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से एक ग्रुप कहेंगे। और अगर ये फिफ्थ प्रॉपर्टी उसी सेट में मौजूद हो, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू स्टार अगर सेट जी में मौजूद हो, तो फिर हम उसी सेट को उसी स्टार के लिहाज से कम्यूटेटिव ग्रुप या एबेलियन ग्रुप कहते हैं। इफ कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन जी, देन जी इज कॉल्ड एबेलियन ग्रुप। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रुप का डिफिनीशन था। अब हम आते हैं नेक्स्ट, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। लेट जी बी अ ग्रुप, देन कैंसलेशन लॉ होल्ड्स इन जी। जब कभी हमारे पास अगर एक सेट हो और एक बाइनरी ऑपरेशन हो, तो कभी कभी हमें कैंसलेशन की जरूरत होती है। तो कैंसलेशन लॉ किसी भी ग्रुप में अगर जरूरी हो तो हम कर सकते हैं। कैंसलेशन लॉ होल्ड्स इन जी। आइडेंटिटी एलिमेंट एज यूनिक। कोई भी सेट अगर वो ग्रुप हो तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर होगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट हर एक ग्रुप में यूनिक होता है। मतलब यह है कि किसी भी सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट एक से ज्यादा नहीं हो सकती। हर एक ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी है, इनवर्स ऑफ द एलिमेंट इज यूनिक। कोई भी सेट अगर वो ग्रुप हो तो उसके हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट यूनिक होगा। एवरी एलिमेंट हैव यूनिक इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स ऑफ द एलिमेंट, इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इन सेट जी मस्ट बी यूनिक। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू ए। इसका मतलब है इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी।
और यहाँ पे फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्स ऑफ ए बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, इससे क्या मतलब है, डिफिनीशन, the number of elements in a group G is called the order of G and is denoted by this symbol. Group G. A group G is said to be finite if G consists of only a finite number of elements. Otherwise, G is said to be infinite group. किसी भी ग्रुप में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो तो उसी ग्रुप को हम फाइनाइट ग्रुप कहते हैं। और अगर किसी ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट G में इनफाइनाइट हो तो उसी ग्रुप को हम इनफाइनाइट ग्रुप कहते हैं। The finite group is that group where the number of elements in the given set is finite. Infinite group is that group where the number of elements in the given set will be infinite. अब यहाँ पे क्या है, order of element. Let A be an element of a group G. A positive integer n is said to be the order of element A if A power n is equal to E and n is the least such positive integer. Prove that Z plus, where Z is the set of all integer, is an infinite Abelian group. यहाँ पे हमारे पास ये जो प्रॉब्लम है इसमें सेट ऑफ इंटीजर्स है और बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है। इसको साबित करना है कि ये क्या है, इनफाइनाइट एबेलियन ग्रुप है। सॉल्यूशन, ये क्या है, दिस इज द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। द सेट ऑफ इंटीजर z टुगेदर विद ऑपरेशन एडिशन, इसको देखते हैं। द सिस्टम इज z प्लस, इसको हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहेंगे अगर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन हो। अब z क्या है, दिस इज सेट ऑफ इंटीजर और यह जो प्लस है दिस इज द बाइनरी कंपोजिशन इन z या बाइनरी ऑपरेशन इन z। अब ग्रुप के लिए जो एक्सियम्स है या जो प्रॉपर्टीज है इसको हम बारी बारी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्लोजर एक्सियम या क्लोजर प्रॉपर्टी, फॉर एनी टू इंटीजर्स or all a b belong to z, a plus b will also belong to z. That is, sum of any two integer is an integer. Set of integer से अगर हम कोई से दो integer ले लें, अगर उसको हम ऐड कर लें तो ये रिजल्ट हमें z का मेंबर मिलेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि addition is a binary operation on z, that is z is closed under addition। इसको हम कहते हैं closure axiom। Associative law, for any three element of set Z, associative law holds। set Z से अगर हम कोई से थ्री इंटीजर्स अगर हम ले लें, Z क्या है, Z is the set of integers। तो अगर Z से अगर हम कोई से थ्री इंटीजर ले लें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसमें होल्ड करेगा। एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स for any three elements of set Z। तो एसोसिएटिविटी यही है। Existence of identity क्या है, there exists an element 0 in Z such that a plus 0 is equal to a and a is equal to 0 plus a for all a belong to Z। इसका मतलब यह है कि if we have for all integer a there is integer 0 such that a plus 0 or 0 plus a both will give a, hence this 0 is the additive identity element here। This means existence of identity element, existence of additive identity element। अब हम डिस्कस करते हैं existence of additive inverse। Existence of additive inverse क्या है, for all integer a there exists an element minus a in Z such that their sum in this way or in this way both will be equal to 0। So a and minus a both are additive inverse of each other। तो सेट Z में हर एक इंटीजर के लिए additive inverse मौजूद है। Minus a is the inverse of a under addition, so Z plus is a group।
सेट ऑफ इंटीजर में हर एक इंटीजर के लिए एडिटिव इनवर्स मौजूद है, तो 4 प्रॉपर्टीज यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, लिहाजा Z प्लस एक ग्रुप है। कम्यूटेटिव क्या है? पार एनी टू इंटीजर्स a plus b is always equal to b plus a, thus Z plus is an abelian group। ये क्या है? Z plus, that is the set of integer together with addition, is an abelian group। फिफ्थ प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे है इनफाइनाइट abelian group। इनफाइनाइट का मतलब क्या है? since the number of integer is infinite, इसी सेट में नंबर ऑफ इंटीजर क्या है? इनफाइनाइट है। तो जिस सेट में नंबर ऑफ मेंबर्स इनफाइनाइट हो, तो वो सेट क्या बनाता है? वो उसी सेट को हम उसी ऑपरेशन के लिहाज से इनफाइनाइट ग्रुप कहेंगे। since the number of integer is infinite, that is Z is infinite set, hence this group, this is an infinite abelian group। तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज एन इनफाइनाइट abelian ग्रुप, क्योंकि इसमें 4 प्रॉपर्टी, ये चारों प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं। दीज आर, ये प्रॉपर्टीज किसके लिए है? ऑन अकाउंट ऑफ दीज 4 प्रॉपर्टीज दिस सेट इज अ ग्रुप। ऑन अकाउंट ऑफ 5th प्रॉपर्टी दिस वन इज abelian ग्रुप। ऑन अकाउंट ऑफ 6th प्रॉपर्टी this algebraic structure is an infinite abelian group। यहाँ पे क्या है? prove that Q together with addition, ये क्या है? what is this Q? where Q is a set of rational number is an infinite abelian group। इसको चेक करना है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर एडिशन के लिहाज से इनफाइनाइट abelian ग्रुप है कि नहीं। So our algebraic structure is Q together with addition। The system is this one, where Q is the set of rational number and this one is the binary operation in Q। अब हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये जो प्रॉपर्टीज है, क्लोजर एक्सियम क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको हम डिस्कस करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये 4 प्रॉपर्टीज ग्रुप के लिए है। और ये जो 5th प्रॉपर्टी है, ये abelian ग्रुप के लिए है। और यहाँ पे जो 6th प्रॉपर्टी है, ये इसलिए कि हमारे पास ये ग्रुप फाइनाइट ग्रुप है या इनफाइनाइट ग्रुप है। तो सबसे पहले हम क्लोजर एक्सियम को देखते हैं। फॉर एनी 2 रेशनल नंबर्स देयर सम will also be a rational number। इसका मतलब क्या है? sum of any 2 rational number is a rational number। यहाँ पे associativity है। for any 3 rational numbers, यहाँ पे क्या है? any 3 rational number the associative law holds for the element of set Q। ये क्या है? existence of identity। for any element of set Q there exists 0 in set Q such that a plus 0 will always be equal to 0 plus a and both will be equal to a। क्या है? existence of inverse। for all rational number a there exists an element minus a in Q such that a plus minus a will be equal to 0। similarly minus a plus a will also be 0। मतलब ये हुआ कि सेट Q में हमारे पास हर एक एलिमेंट के लिए एक नेगेटिव एलिमेंट मौजूद है। जब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो वो हमें एडिटिव आइडेंटिटी देगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इन 4 प्रॉपर्टीज की वजह से हम इसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? इट इज अ ग्रुप। अब कम्यूटेटिव चेक करते हैं। पार any 2 rational numbers the commutative law holds। this is the commutativity, hence this algebraic structure is abelian group। अब इसके अलावा since the number of rational number is infinite, that is Q is infinite set, hence this algebraic structure is infinite abelian group।
तो इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप के लिए हमारे पास टोटल 6 प्रॉपर्टी है। फर्स्ट 4 प्रॉपर्टीज ग्रुप के लिए है, फिफ्थ प्रॉपर्टी एबिलियन ग्रुप के लिए है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी फाइनाइट या इनफाइनाइट ग्रुप के लिए है। कम्यूटेटिव और एग्जांपल है, प्रूव दैट द सेट ऑफ रियल नंबर टुगेदर विद एडिशन is an infinite abelian group। ये क्या है? दिस इज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। आर क्या है? आर इज सेट ऑफ रियल नंबर। तो इसको चेक करना है कि ये इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप है कि नहीं। अब हमारे पास जो प्रीवियस क्वेश्चन था क्यू वाला, तो अगर क्यू की जगह यहाँ पे हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, अगर इसी क्यू को यहाँ पे जितनी भी जिस जगह भी क्यू है, अगर क्यू की जगह अगर हम आर फिट कर लें तो हमें इसी क्वेश्चन का सलूशन मिलेगा। एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्रीवियस एग्जांपल, यानी प्रीवियस एग्जांपल में क्यू की जगह अगर हम पुट कर लें तो इसी क्वेश्चन का सलूशन हमें मिलेगा। अब एक और एग्जांपल है, प्रूव दैट c प्लस वेयर c इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एन इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप। इसको चेक करना है कि द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टुगेदर विद एडिशन इज एन इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप है। इसको चेक करना है। यहाँ पे क्या है? इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप। इसको चेक करना है कि हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको चेक करना है कि ये इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने चेक करना होगा कि इस क्लोजर प्रॉपर्टी है कि नहीं, एसोसिएटिव लॉ इसमें है कि नहीं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी चेक करना है और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स चेक करना होगा। ये चारों प्रॉपर्टी ग्रुप के लिए है। और ये जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है ये कम्यूटेटिव ग्रुप या एबिलियन ग्रुप के लिए है। और सिक्स्थ प्रॉपर्टी फाइनाइट या इनफाइनाइट ग्रुप के लिए होगा। तो हम शुरू करते हैं सोल्यूशन। यहाँ पे है the system C plus where C is the set of complex number and plus is the binary operation in C। तो क्लोजर एक्सिम का मतलब क्या है? For any two complex number where sum will also be a complex number, that is the sum of any two complex number is a complex number। अगर हम सेट C से कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, अगर उनको हम ऐड कर लें तो ऑब्वियसली रिजल्ट हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। यहाँ पे एक्चुअली हमने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिए हैं। दिस ए रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस बी रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ वी टेक actually two complex number, if we add them we get again a complex number, hence set C is closed under addition of complex number। तो सेट C से अगर हम कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें तो इसका सम भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो C क्या है? C satisfies closure property। एसोसिएटिव लॉ क्या है? If we take any three complex number we know that the set of complex number satisfies the associativity। थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम ले लें और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर हम चेक कर लें तो हमें ये मालूम है कि तीन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। लिहाजा सेट सी में एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मौजूद है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या मतलब है? सेट सी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 0 एंड सी में इसी जीरो का मतलब क्या है? दिस जीरो इज एक्चुअली दिस वन। यहाँ पे अगर हम देख लें ये जो जीरो है, ये जीरो क्या है? ये असल में ये वाला है। दिस जीरो इज एक्चुअली जीरो प्लस आयोटा जीरो। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम जीरो लें, वेयर दिस जीरो इज एक्चुअली दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अगर जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इन दोनों को हम ऐड कर लें तो रियल पार्ट आपस में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट आपस में ऐड होगा। तो इसी सूरत में या इसी सूरत में, दोनों सूरतों में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ए वापस मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट यानी एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मौजूद है। For any complex number we have a zero complex number
such that a plus 0 and 0 plus a will always be a. This is called property of existence of additive identity. 0 क्या है? This 0 is a complex number because this one. अब क्या है? Existence of inverse. For all a belong to C, there exists an element minus a and C such that a plus minus a equal to minus a plus a and both are equal to 0. इसका मतलब क्या है? For any complex number a, we have a negative complex number n C such that the sum of a complex number with its negative complex number will always be the zero complex number. तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. C प्लस, दिस C प्लस इज अ ग्रुप. ग्रुप के लिए जो चारों प्रॉपर्टीज है, वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई. दीज 4 प्रॉपर्टीज आर इनफ फॉर दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर टू बी अ ग्रुप. तो यहाँ तक हमारे पास साबित हुआ कि C प्लस एक ग्रुप है. अब कम्यूटेटिव लॉ क्या है? फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर द कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स, हेंस C प्लस इज एबेलियन ग्रुप. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? C प्लस. अब देखना है कि ये इनफाइनाइट एबेलियन ग्रुप है या फाइनाइट एबेलियन ग्रुप है. तो सिक्स प्रॉपर्टी क्या है? सिंस द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इनफाइनाइट, इट इज C is infinite set, hence this group is infinite abelian group. ये हमारे पास क्या है? infinite abelian group है. अब यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल है. दिस इज एन एग्जांपल और हमें क्या चेक करना है? वी प्रूव दैट दिस वन, इसको चेक करना है. दिस इज एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, नेचुरल नंबर है और साथ में एडिशन है. This n means n is a set of natural number, is a semi group and not a group. इसको देखना है कि ये एक ग्रुप नहीं है बल्कि semi ग्रुप है. semi ग्रुप का मतलब ये है कि सेट n में क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगा और इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगा. तो जिस सेट में क्लोजर प्रॉपर्टी हो और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो तो उसी सेट को उसी ऑपरेशन के लिहाज से सीमी ग्रुप को हम कहेंगे. बाज जगहों पे सीमी ग्रुप के लिए 3 प्रॉपर्टीज होने चाहिए. बाज बुक्स में ऐसा है कि अगर एक सेट किसी बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से अगर वो सीमी ग्रुप हो तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगा, उसमें एसोसिएटिविटी एग्जिस्ट करेगा और उसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा. लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज है, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी. तो हम 2 प्रॉपर्टीज चेक करेंगे. प्रूव दैट दिस स्ट्रक्चर इज अ semi group and not a group. The system this one where n is a set of natural number and this plus is a binary operation in n. For any 2 natural number, the sum of any 2 natural number is again a natural number. और इसको वर्ड्स में यहाँ पे लिखा गया है सम ऑफ एनी 2 नेचुरल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. कोई भी किसी भी 2 नेचुरल नंबर का सम एक नेचुरल नंबर होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट n इज क्लोज अंडर एडिशन या सेट n में क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है. एसोसिएटिविटी क्या है? फॉर एनी 3 नेचुरल नंबर्स एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स. तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करता है, एसोसिएटिविटी एग्जिस्ट करता है, हेंस दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज अ सीमी ग्रुप. अब ये देख रहे हैं कि इसमें आइडेंटिटी है कि नहीं. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अंडर एडिशन कंपोजिशन 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. एडिशन कंपोजिशन या बाइनरी ऑपरेशन एडिशन में 0 हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है. But 0 does not belong to n. 0 क्या है? जमा के लिहाज से 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, लेकिन 0 is not a natural number. लिहाजा this structure is not a group. C में ग्रुप तो है लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हमारे पास आइडेंटिटी नहीं है.
तो आइडेंटिटी जिस ग्रुप में ना हो तो उसी स्ट्रक्चर को हम ग्रुप नहीं कह सकते. So n plus is a semi group but it is not a group. N plus is a semi group and not a group. So this is the final answer.